Hi, good afternoon to everyone, and a happy Mother's Day to all of you, all of the wonderful mothers. We are just waiting for 1 or 2 minutes more to let parents and mothers join, and then we will continue with the event. So we'll wait maximum for 1 minute more, and we'll start the event now. Amen. Joyce. 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 Joyce.
A very warm welcome to all of you from our Soranjali team. I hope everyone can hear me loud and clear. Till other parents are joining, let me introduce my host today on all the experts on our panel. We have one of the senior most therapists with me, which is Falguni ma'am. She's having 16 plus years of experience in Comdal and as well as different center managers and work very closely with autism and ADHD and neurodiverse kids. She has extraordinary talent to handle kids and counsel the parents. One of the leading therapists in the city. Along with that, we have Ruchi, who you all guys know. I hope I don't need to introduce her. And we have two more interesting guests with us. One is Mr. Anshuman Yadav. He is in Master of Audiology in Speech and Language from Aish Mysore. And he worked with a different organization like KGMU and have clinical experience in Aish Mysore, as well as he is an cochlear implant audiologist at the Cochlear, and he is leading our audiology vertical and speech vertical at Swaranjali. Apart from that, we have new member in the family and expert panel, Mrs. Kalpana Tiwari. She is a speech language pathologist from AYJ, and she has worked around 9 plus years of experience in different domains. All of them are available at your convenience and ease to use, so that कि आप सारे questions पूछ सकते हैं. And today is not about Soranjali. Today it's about all the fantastic mothers जो seriously day and night work करते हैं अपने. I'll request to like अगर आप लोग अपने आप को म्यूट पे रख पाएंगे, तो आप म्यूट करें. म्यूट पे कर पाएंगे तो we'll be have a better discussion. Without wasting much time, I'll wish everyone a very fantastic Mother's Day. और आप सब एक मदर नहीं हैं, आप एक सुपर मदर हैं, as सोरांजलि हमको लगता है, बिकॉज आप एक इमोशन एक इमोशन के साथ मुझे लगता है कि आप सिर्फ इमोशंस नहीं है एक मदरहुड, एक आप न्यूरो डाइवर्स किड के एक मदर हैं. और सोसाइटी में बहुत सारा चैलेंजेस आता है जब आपको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं. मुझे लगता है सिर्फ अपने फैमिलीज के लिए आप सिर्फ हमेशा ग्रैटिट्यूड, लव एंड अफेक्शंस देते रहते हैं, बट आप अपने लिए कभी नहीं सोचते. तो आज हम सोरांजलि चाहता था कि आप सबके साथ एक अपना एक
एक ग्रेटिट्यूड शेयर करना, एक लव अफेक्शन जो हमें लगता है कि आप सीरियसली डिजर्व करते हैं और आप अपने लिए कभी टाइम नहीं निकालते। तो आज हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपना 1 घंटा हमारे लिए प्लीज़ दें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सो फ्लो ऑफ द इवेंट हम ऐसा रखेंगे कि विल हैव इंट्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, एंड नाउ I'll ask my experts one by one to please elaborate on the occasion, और जो भी टॉपिक है आज का, the Swaranjali is celebrating is it is like it is the super mom Sunday। हम एक इमोशन जो नर्चर करना चाहते हैं हम उसको प्रोसीड करना चाहेंगे। तो वी वेलकम ऑल योर गाइज, एंड अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद रुचि। प्लीज you can continue, and then we'll take Falguni ma'am, Kalpana ma'am, and Shuman sir. Please, Ruchi. रुचि, आपका माइक म्यूट है आई गेस। हैप्पी मदर्स डे ऑल मदर्स, और आपको बहुत शुभकामनाएं हैप्पी मदर्स डे पे। और आप यू आर सुपर मॉम, आप बहुत अपने बच्चे के लिए करते हैं। बच्चे की थेरेपी करना, सोसाइटी को फेस करना, और अपनी इमोशंस को भी आप कहीं ना कहीं बता नहीं पाते हैं कि बच्चों की इमोशंस जो होती हैं शेयर नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी में एक फियर रहता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है बच्चों को, तो वो भी एक आपका फियर रहता है। तो उसको भी फेस करना, फिर घर की चीज़ों को भी हैंड मैनेज करना और बच्चों को भी मैनेज करना, वो बहुत अच्छे से आप करते हो। मैं देखती हूँ कि क्लिनिक्स पे मदर्स जो आती हैं, बहुत मदर्स वर्किंग हैं, तो जॉब के साथ में बच्चों को थेरेपी भी कराना, घर पे भी मैनेज करना बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मदर्स हैं जो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि वो कैसे बच्चों को मैनेज करती हैं, कैसे बच्चों के साथ सेशंस में गाइडेंस लेना और फिर घर पे फॉलो करना, होम प्लान फॉलो करना। और बात करेंगे फाल्गुनी मैम। We'll request Falguni ma'am, please. मैम माइक। Your mic is muted, I guess. Yes. हेलो एवरीवन, मैं सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहती हूँ। क्योंकि मदर्स डे तो एवरीडे होता है, लेकिन जैसे आप लोग हैं वो जो एक्स्ट्रा स्पेशल एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग करने के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा एफर्ट वाली चीजें हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल करते हैं तो कभी कभी हम एक एक हफ्ते तक भी बाल नहीं बना पाते हैं अपने, है ना। वो एक जूड़ा बंधा रहता है जो कि हम एक हफ्ते बाद खोलते हैं, और बहुत सारी मदर्स ये सारी चीजों से गुजर रही होती है। लेकिन बस ये मदर्स डे पे मैं यही बताना चाहूंगी कि जो बच्चे अगर अभी थेरापी ले रहे हैं, बस आप उनके साथ थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए, और उनकी जो छोटी छोटी विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट कीजिए। तब जाके आपको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि अगर हम ग्रॉस इम्प्रूवमेंट देखना चाहेंगे कि बच्चा कल ही बोलने लग जाए, या फिर ऐसे कुछ मिरेकल्स हो जाए कि बच्चा एकदम से बोलने लग जाए, एकदम से वो सारी चीजें करने लग जाए जो करनी चाहिए, तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, और हम कभी भी वो बच्चों में भी वो खुशी नहीं ला पाएंगे। तो छोटी छोटी विक्ट्री जो है, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, और आप देखो कि बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका जो फेस है वो एकदम डिप्रेशन में रहेगा और बच्चा रोज आपको उसी फेस में देखेगा, तो वो भी सारी चीजें वैसे ही परसीव करेगा। अगर वो आप इतना खुश रहोगे उसके सामने, तो बच्चा भी खुशी खुशी आगे बढ़ेगा। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है मेरी सारी मदर से कि खुश रहो, और बच्चे को भी उस खुशी का मौका दो, मतलब है। थैंक यू। बहुत थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने। नाउ आई रिक्वेस्ट अंशुमन सर। अंशुमन सर, कैन यू हियर मी? Okay.
I think he is there. Anshuman, sir. Yes, please, sir. Okay, I hope there is some trouble from his side. I'll connect him. Kalpana ma'am, please go ahead. Uh, Good afternoon, everyone. First of all, happy Mother's Day to all for your love, जो आपका प्यार है, आपकी स्ट्रेंथ है और आपका डेडिकेशन है अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए और उन स्पेशल मदर्स को जिनको 1 सेकंड मैम इज ऑल्सो अ मदर, तो आई होप देखिए कितने चैलेंजेस होते हैं, वी कैन सी कि एक बच्चा मदर को 1 मिनट के लिए छोड़ना नहीं चाहता है, तो ये डिवोशन है उन मदर्स के लिए, सीरियसली जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, और स्पेशल मोमेंट है, सीरियसली आप सबको अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, आई होप। और कितने सारे सोशल स्टिग्मास हैं जो हमको फेस करने पड़ते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपनी बात किसी से शायद शेयर में नहीं कर पाते हैं, जो हम सही में हम सिर्फ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गिविंग जो मैं फॉलो करता हूँ कि सिर्फ देना इम्पोर्टेंट है, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट कि हमें चाहिए, इट विल इवेंचुअली कम, सो इन आप मदर्स से बेस्ट ये कोई नहीं समझ सकता, सो आई होप कि या मैम इज हियर। सॉरी, आई एम ऑल्सो अ मदर। तो जैसे आप सबके जीवन में जो स्ट्रगल है, सेम ईयर की जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज चल रही हो तो सारे क्राइसिस आ जाते हैं। लेकिन आपको स्पेशल सैल्यूट है मेरी तरफ से, जो आप अपने घर के साथ, अपने बच्चे के साथ उनके स्पेशल नीड्स पे भी काम करते हो, उसके लिए भी टाइम निकालते हो, तो आप लोगों को उस चीज के लिए हम सैल्यूट करते हैं। थैंक यू। Thank you, Kalpana ma'am. Thank you very much for your beautiful introduction. And now I think it's time so that we can talk on the topics like ma'am, एक दो चीजें मैं आप experts panel से पहले introduce करना चाहूँगा, and then we will have the experiences of the mothers. ये meet बहुत interesting होने वाला है, तो I'll request कि please आप लोग stick रहें. You will have a valuable information, trust me. क्योंकि हम उन मदर्स को भी इनवाइट किया है हमने, जो मदर्स सीरियसली इस जर्नी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, और आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज दे पाएंगे जो सही में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और आपको भी, तो इट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग मीट टुडे। तो आई रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन आस्क अदर मदर्स आल्सो टू कनेक्ट, जो हमें बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लेट मी आस्क सम कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि एक मदर होने के नाते, एज आई एम नॉट अ मदर बट आई लिव around with this, तो मुझे पता है कि I have 5 years of experience knowing all of you. So सबसे बड़ा जो स्ट्रगल मुझे लगता है वो होता है एक इमोशनल बर्डन। जैसे एक स्पेशल मदर जब किसी न्यूरो डाइवर्स किड की मदर होती है, तो उसको लगता है कि व्हाई मी, सिर्फ मेरी क्या हुआ, क्यों हुआ। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम अपने आसपास देखते हैं, और हम अपने असेसमेंट्स, वेटिंग एरियाज में, मेरा कान उधर ही लगा रहता है, सॉरी टू यू गाइस, बट आई फील कि दे ब्लेम देमसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक फाल्गुनी मैम, ब्लेमिंग इज द सॉल्यूशन? वन अगेन, पार्डन। मतलब मदर्स ब्लेम करते हैं अपने आप को कि हमारे ही साथ ऐसा हुआ, वो इमोशनली बर्डन लेते हैं अपने आप पे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने ही क्या गलती करी थी, है ना, व्हाई मी। सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा करना चाहिए मदर्स को? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये जो जिस चीज से अभी मदर परेशान है, अगर वो चीज को वो थोड़ा समझने की कोशिश करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये किसी की इंडिविजुअल गलती नहीं है। हो सकता है कि जैसे हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, या फिर हमारी लाइफस्टाइल और जो वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये सारी चीजें हो, तो अपने आप को ब्लेम करने से पहले मुझे लगता है कि वो कॉज को जाने, तब जाके वो समझ पाएंगे कि ये सारी चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रही है ना। तो ये ज्यादा जरूरी है, चीजों का नॉलेज रखना ज्यादा जरूरी है, रादर देन जस्ट खुद को ब्लेम करना या फिर अपनी खुद की परवरिश पर ब्लेम करना। उससे हम और ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं।
Okay. Now I'll ask Ruchi if she is able to answer. बहुत सारे पेरेंट्स अपने को सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. द क्वेश्चन इज कि उनको लगता है कि सोसाइटल फेयर है, वो एक्सेप्टेंस सोसाइटी में कैसे लाया जा सकता है. तो व्हाट डू यू वांट टू से, आप कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहना चाहेंगे मदर्स को कि सोसाइटल पीरियड जैसे कि फंक्शंस पार्टी में बच्चों को ले जाते हैं तो वहाँ बच्चे एडजस्ट नहीं होते हैं. बहुत सारी मदर्स का कंसर्न होता है कि हम पार्टी में लेके जाते हैं तो वहाँ के रिलेटिव बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम में बच्चे को मत लेके आना, बच्चा बहुत क्रैंकी है आपका. तो ये बहुत ज़्यादा मदर्स का कंसर्न होता है. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि पार्टी फंक्शन है तो हम रैंडमली बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. तो हमें उसके लिए पहले से ही प्लान करना है कि फास्ट फंक्शन पार्टी में लेके जाना है तो हमें पहले से ही छोटी छोटी गेट टुगेदर में उनको लेके जाना, पार्क में लेके जाना, मॉल्स में और सुपरमार्केट हो गया. तो पहले छोटे छोटे क्राउडी एरिया में उनको लेके जाना, उनको इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो एकदम से क्राउडी एरिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ग्रुप में इन्वॉल्व करना या आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ में थोड़ा सा इन्वॉल्व करना, और खुद भी मदर्स या फादर्स को खुद भी बच्चों के साथ में बच्चे बन के उनके साथ खेलना, क्योंकि बच्चों का जो प्ले स्किल्स होता है वो बहुत डिले होता है इन बच्चों में. तो हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ में प्ले स्किल्स पे बहुत वर्क करना चाहिए. ज़्यादातर मदर्स इन सब चीज़ों पे काम नहीं करती, वो स्पीच पे ज़्यादा फोकस करती हैं. स्पीच पे भी करना चाहिए लेकिन बच्चे का प्ले स्किल सोशलाइजेशन नहीं है. तो आप सोचिए बच्चे फंक्शंस में जा रहे हैं, वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप भी पार्टी फंक्शन में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे भी क्रैंकी हो रहे हैं. तो मेरा एडवाइस यही रहेगी कि आप बच्चों के सोशलाइजेशन, जितना आप स्पीच पे फोकस करते हैं उतना आप सोशलाइजेशन पे भी फोकस करें. और उसके लिए प्लान करने पड़ते हैं. ये नहीं कि फंक्शंस पार्टी है, जैसे अभी ईद थी तो बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि हम उनको लेके गए तो बच्चे एडजस्ट नहीं हो रहे थे, रो रहे थे वहां पे. तो पहले से ही प्लान करना है कि जैसे कि सेंटर पे यदि आपको ग्रुप मिल रहा है तो वहां पे भी ग्रुप लेना है. डेली नहीं तो वीक में 2 डेज या पार्क में लेके जाना. और जरूरी नहीं कि आप 1-2 घंटे के लेके जाइए. फर्स्ट टाइम उसको 15-20 मिनट इंट्रोड्यूस कराइए, फिर धीरे धीरे आप टाइम स्लॉट उसका सा बढ़ाइए कि हाफ आवर फिर 1 आवर. क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि बच्चों के साथ खेलना नहीं आता है, और बच्चों की जो डेवलपमेंट डिले में सोशलाइजेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो फर्स्ट ऑल हमें घर से ही इम्प्रूव करना चाहिए कि खुद बच्चों के साथ खेलना, फिर बच्चों को धीरे धीरे पार्क में लेके जाना, और संडे को सुपरमार्केट हो गया, मॉल्स हो गया, गेम जोन्स हो गया, वहां पे लेके जाना. और ये मेरी एडवाइस होगी, आप कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू रुचि मैम. एंड आई विल आस्क, देयर इज अ मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू है, एंड आई रिक्वेस्ट कल्पना मैम टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि बहुत सारा अवेयरनेस और सपोर्ट नहीं मिलता मदर्स को. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किसी मदर को क्या कर सकते हैं हम उसके, अगर उसको सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए, या उसको सपोर्ट जो उनको सीरियसली रिक्वायर्ड है एक स्पेशल मदर के होते हुए, एक नॉर्मल मदर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए. तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस टॉपिक पे? सो सबसे पहले सोसाइटी में एडजस्ट होने से पहले आपको खुद में एडजस्ट होने की जरूरत है. आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि देयर इज समथिंग स्पेशल जो अभी हमारे पास है. वी कांट चेंज बट वी कैन इम्प्रूव इट. तो जितनी जल्दी आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेटर हम उस पर काम कर पाएंगे. और सबसे मेन रोल होता है मदर का. थेरेपिस्ट आपको गाइड करते हैं, थेरेपिस्ट आपको तरीके बताते हैं, बट जो मदर होती है काम उसका ही होता है उन चीजों को जनरलाइज करने का. क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप ही अपने बच्चे को कैरी करते हो, आप ही अपने रियल एक्सपोजर देते हो उसको. सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए आपको मतलब वो भूख नहीं होनी चाहिए कि बस मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट हो, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर ले, है ना.
चीजें होंगी, धीरे धीरे होंगी, ओवर अ टाइम होंगी, एकदम से कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन जब आप स्ट्रांग रहोगे तो आपके बच्चे का इम्प्रूवमेंट सबसे बेस्ट होगा। और उसी तरह से जब आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, तो सोसाइटी भी आपको देख के उस कॉन्फिडेंस में आएगी, क्योंकि सोसाइटी को समझाने वाले हम हैं। अगर मेरे अंदर ये वीकनेस होगी कि मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो सोसाइटी सबसे पहले आपको जज करने खड़ी होगी। लेकिन अगर मैं अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करूंगी कहीं पे, ठीक है, ये है, ऐसा है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं और ये ऐसा ही होता है, हमें इस चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट किया है और हम इसको इसी तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, तो सोसाइटी भी आपके सपोर्ट में आएगी, है ना। ये फियर नहीं होना चाहिए कि मुझे सोसाइटी जज करेगी, क्योंकि आपका बच्चा एक स्पेशल नीड के साथ है। जिनके बच्चे नॉर्मल है, सोसाइटी उनको भी जज करती है। एक ही क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, तो उनमें भी कंपैरिजन किया जाता है ना। फैमिली में भी अगर एक ही दो ब्रदर्स के बच्चे हैं, तो घर वाले पूरे टाइम उनको कंपेयर करते रहते हैं, और मदर उस स्ट्रेस में रहती है कि अच्छा, उसके बच्चे को A to Z आता है, मेरे बच्चे को सिर्फ अभी A to E ही आता है। तो दे आर थिंग्स, हर चीज के लिए सबसे पहले आपका खुद का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जितने अच्छे से आप अपने को एक्सेप्ट करोगे और अपने बच्चे को एक्सेप्ट करोगे, तब आप अपनी फैमिली को सबसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट करा पाओगे, और नेक्स्ट फिर सोसाइटी को एक्सेप्ट करा पाओगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा ना, तो सोसाइटी भी आपको कुछ भी बोलने के पहले सोचेगी। Very well said, Kalpana ma'am, and I hope कि parents को advice अच्छी लगी होगी. Now it's time. I'll ask some parents, please. I'll ask some parents so that कि वो अपने experiences share करें, because देखिए हम तो हर वक्त बोलते रहते हैं सेंटर पे, है ना, हमारे experts तो आपको खूब सारी advice देते रहते हैं, but आज हमारा दिन नहीं है, it's your day. तो हम चाहेंगे कि हम कुछ ऐसे पेरेंट्स जो हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे, और कुछ ऐसे पेरेंट्स जो अभी हाल ही में जुड़े हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हम जानना चाहेंगे कि एज अ मदर आपको आपकी जर्नी क्या रही, आपकी मैटरनल वेलबींग से लेकर के आप कैसे अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को पे काम करते हैं, और आपके क्या स्ट्रगल्स रहे, इनिशियल स्ट्रगल्स रहे, और आपने कैसे उसको मैनेज किया। ये एडवाइस सीरियसली इतनी वैल्यूबल होने वाली है, जो बाकी मदर्स को एक practical formula degi rather than a theoretical concept. So I'll ask one of the oldest I think our associated parent. I'll ask Nirbhaya's mother, ma'am, Richa Serene ma'am, can you share your experience in 1 to 2 minutes for other parents, so that कि उन्हें भी कुछ advice और valuable information मिले आपसे. I'll request you, please come up with your journey. Hello everyone. कैसे हैं रुचि मैम? हेलो मेरी मैम। आवाज आ रही है? कैसी हैं आप? यस मैम, ठीक है, आप कैसी हैं? बस, थैंक यू सो मच. हेलो. हाय. Hello. You are looking as energetic as you were here in Lucknow. ट्रस्ट मी सर, वो डबल हो गया है. वो एनर्जी लेवल्स डबल हो गए हैं इस समय. Yeah. It's all about the good weather you are enjoying in Bangalore. No, the weather is very bad. हाँ, मैं enjoying Bangalore because the second home है, तो it's okay. घर वाली फीलिंग आती है बैंगलोर में, तो कोई दिक्कत नहीं है. Okay, that's मैम आपकी एनर्जी पहले जैसी ही है, बिल्कुल सुपर स्ट्रांग. उसे डबल कर दिया मैंने, उसे डबल कर दिया है. हाँ, यस. क्योंकि यहाँ पे भागा दौड़ी ज्यादा है ना, घर पे रहते हैं तो आराम से होता है, सिर्फ निर्भय थे. अभी यहाँ पे निर्भय के साथ घर भी है, तो एनर्जी डबल करनी पड़ती है. खैर, एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इस मीट के लिए इनवाइट किया. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स. हम सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं, ट्राइंग टू टेक शेड. एंड यस, मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया है, बिकॉज मेरा बेटा निर्भय 9 years old है, 9 साल के हैं वो, और मैं स्वरांजलि से जुड़ी थी 2 साल पहले. एंड मेरा एक्सपीरियंस स्वरांजलि के साथ बिल्कुल ए क्लास रहा है. इट्स लाइक द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड इन टर्म्स ऑफ थेरेपी सेंटर्स. निर्भय की थेरेपीज खैर जैसे बाकी बच्चों की चलती है वैसे ही चल रही है. इम्प्रूवमेंट्स हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन ऐसा लगता है कि बच्चे फिर वापस वहीं आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था. तो ये एक
जिगजैग जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे जाता रहेगा और ये आई थिंक परमानेंट है। तो एज अ मदर सबसे पहली चीज जो मैंने अपने इस 9 साल के जर्नी में सीखी और उसको दिमाग में बिठा लिया है कि मेरी लाइफ ऐसी ही चलेगी। There will be days that will be very good and there will be days that will be extremely bad. और इस वेरिएंस को मैनेज करना मुझे भी सीखना है और मेरे बेटे को भी सीखना है। तो पहली चीज जो मुझे सीखनी थी वो ये था कि मुझे अपने आप को इतना काबिल बना लेना है कि इन फ्लक्चुएटिंग डेज के दौरान मैं हाइपर ना हूं। मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना है, मेरा दिमाग शांत रहना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे को ज्यादा फोकस कर सकूं उस पे और उसको हेल्प कर सकूं उस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने में। तो ये 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत मल्टीपल सेंटर्स में जाके एक्सपीरियंसेस लिए हैं। ओटी सेशंस, स्पीच सेशंस, बिहेवियरल सेशंस, ग्रुप थेरेपीज, ABA सेशंस, ये सब है जो कि एक सपोर्टिंग है मेरे बच्चे के लिए। और ऑनेस्टली इन सब के साथ मैंने भी ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग किस बात की? बच्चा अगर सुन नहीं रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है, बच्चे की नहीं है। बच्चा समझ नहीं रहा है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, बच्चे की नहीं है। हमें बच्चे के लेवल पर जाकर बच्चे को समझाना पड़ेगा और उससे भी पहले हमें बच्चे को समझना पड़ेगा। अगर आज मेरे बच्चे ने रो रहा है सेशन में तो उस रोने की वजह उसके 4 घंटे पहले उसके साथ हुए किसी वजह से हुई है। क्योंकि हमारे सारे बच्चे उस स्पेक्ट्रम में आते हैं जहां पे वो इमोशंस ऑन द राइट टाइम नहीं जज कर पाएंगे। वो इमोशन हमेशा बाद में देते हैं, अपना इमोशन बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर वो कभी कभी अपने से हंसने लगते हैं ना तो हमें लगता है क्या हुआ इसको, वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि 1 घंटे पहले जोक जो मारा था वो उनको अब समझ में आया और अब उसका रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये डिले है मैम, और ये डिले पेरेंट्स आई थिंक जितने भी थेरेपिस्ट हैं उन्होंने मुझे यही समझाया है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बच्चा रिएक्शन दे रहा है आपके या घर के किसी एनवायरनमेंट की वजह से। तो हमें बस ये इंश्योर करना है कि हमारे बच्चे के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर है। जितना हेल्पफुल, जितना चेयरफुल, जितना हंसी मजाक वाला एनवायरनमेंट हम बच्चे को दे पाएंगे, बच्चा उतनी जल्दी हमारी सिचुएशन को समझेगा। अभी मैं एक देख पा रही हूँ, एक पेरेंट है, उनका बच्चा उनके सर पे खड़ा है, शिवांगी मैडम। हाय मैम। तो ये मैम बिल्कुल नॉर्मल है, ये मेरे साथ भी होता है। मेरा बेटा भी बाहर गया हुआ है अपने फादर के साथ घूमने, तो इसलिए मेरे आसपास कुछ नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये जो हो रहा है ये मेरे साथ होता रहता है, आज भी होता है। मेरा बेटा 9 साल का हो गया है, वो आज भी ऐसे ही करता रहेगा, वो चढ़ जाएगा मेरे ऊपर ऐसे, राइट? तो ये दिस इज नॉर्मल एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी कि हमें इतना प्यार मिल रहा है अपने बच्चों से। कई बार जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग होते रह जाते हैं। हमारे बच्चे जितने बड़े होते जाएंगे ना वो हमारे और करीब आते जाते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ मदर कि हमारे पास हमारे बच्चे ज्यादा टाइम के लिए रहेंगे। वी कैन हग देम, वी कैन होल्ड देम, वी कैन लव देम। So this is like the best feeling as a mother, जो मुझे अपने आप को थोड़ा सुपीरियर रखती है नॉर्मल पेरेंट्स से, कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं आते, आप उनको बुलाते हो, प्लीज इधर आओ, एक मम्मा को किसी कर दो, मम्मा को पुच्चा कर दो, मम्मा को हक कर दो। हमें वो बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे हमारे साथ ही हैं। दिस इज द बेस्ट फीलिंग। बट हाँ, मुझे पता है वो कभी कभी वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि हमें वो स्पेस चाहिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो मुझे, थोड़ी देर। आई नो, वो मैं भी उस चीज को
करने की कोशिश करती हूँ, पर वो हो नहीं पाता। बट एक्सपीरियंसेस मेरे एज सारे पेरेंट्स के हैं थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है। बस अब उसके खाने पीने पे ध्यान रखना है मैम, सभी लोगों को। बच्चा क्या खा पी रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है ये मैनेज करिए। और बाकी थेरेपीज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, थेरेपीज रेगुलरली लेनी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। और जो भी थेरेपिस्ट बता रहे हैं उसको 1-on-1 सेशन के बजाय आप बोथ एंड्स पे रखिए। आप बताइए थेरेपिस्ट को बच्चा क्या कर रहा है, और थेरेपिस्ट जो बता रहा है बच्चा आपको उसको भी फॉलो करिए। इट्स लाइक गिव एंड टेक। एक तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है, आप कुछ कर नहीं रहे घर पे, तो बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। बट जब आप भी उसको करेंगे तब आप एक प्रॉपर फीडबैक दे पाएंगे। सो दिस इज इट, मेरी तरफ से तो यही है। थैंक यू वेरी मच रिचा मैम। आपने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन करी एंड हमें आपकी बातों से सीरियसली इंस्पिरेशन मिला। और आप एक एग्जांपल हैं उन मदर्स के लिए जो छोटे छोटे इश्यूज को इतना ज़्यादा इमोशनली बर्डन समझती हैं, एंड यू हैव कन्वर्टेड दैट इमोशन बर्डन टू चैलेंज, एंड आप उसको विक्ट्री की तरह देखती हैं, एंड उसको उससे एक इंस्पिरेशन मिलता है। सीरियसली आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी दैट इज फर्स्ट सेकंड हैंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो सीरियसली मदर्स को बहुत ही एडवाइजेबल होगी और उनको बहुत हेल्प करेगी अपनी बच्चे की केयर गिविंग में। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाउ आई विल रिक्वेस्ट इफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेरेंट ऑफ सुरांजलि, जब से शुरुआत हुई थी सुरांजलि की, तो कुशाग्र की मदर इफ शी इज देयर। हम मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हम सबके इमोशंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम किसी को मिस करें आज के टॉक में तो हमारा कोई आपसे इमोशनली हम उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं आपको। बट अगर कुशाग्र की मदर अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर पाएंगी, तो इफ शी इज एबल टू हियर मी, अगर कुशाग्र's मदर, आई रिक्वेस्ट कि अगर आप अपना जर्नी शेयर करना चाहें तो। I think disconnect कुशाग्र ओके मदर। ठीक है। अभी नाउ वी हैव सेकंड गेस्ट जिनसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं, वो है आयुष की मदर। प्लीज मैम, अगर आप हमें सुन पा रही हो तो आई लव कि आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें। एंड नेक्स्ट मैम अदम्य मदर, प्लीज बी रेडी। आपसे हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। और ईशानी मदर। हाँ, यस। अदम्य मदर, रत्ना मैम, प्लीज कैन यू हियर मी? I think she's on mute. Yeah. No, she's available. Hello? Yes, Ratna Hello, ma'am, please go ahead. Yes ma'am, yes ma'am. एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, लेकिन तो भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। Okay. थोड़ी Thank you मैम। बस मैम ये मैं बतानी चाहती हूँ सारे मदर्स को कि हमारे बच्चों के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था बहुत दिक्कत, लेकिन जिस तरह इम्प्रूवमेंट हो रहा है मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हम लोग के बच्चे रिकवर हो जाएंगे। और इसमें थेरेपिस्ट लोग का बहुत योगदान है। जिस तरह वो लोग सजेस्ट करें प्लीज आप सभी लोग वैसे फॉलो करें और अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। वैसे तो सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, टाइम निकलता नहीं है, लेकिन आप ये सोच लीजिए 2 साल 4 साल हमें अपने बच्चे को अपना टाइम देना है, किसी तरह उसको मैनेज करिए। अगर आप टाइम निकाल के 2-4 एक्टिविटी भी पर डे आप करा रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में कितना जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि मैं खुद देखती हूँ जिस दिन मैं एक्टिविटी कराई रहती हूँ उस दिन मेरा बच्चा काफी एक्टिव रहता है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। और अगर मैं जो थोड़ा सा भी ढीली हुई, अगर एक दिन भी मैं देखती हूँ कि मिस कर दी, तो अगले दिन वो मुझे रिजल्ट दिख जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ये चीजें आप कंटिन्यू रखिए, आप अपने बच्चे के साथ हमेशा इंगेज रहिए, इन्वॉल्व रहिए। इवन किचन में भी काम धाम कर रहे हैं तो उसमें उसके पास अपने पास खड़ा कर लीजिए, वो सारी चीजों को देखेगा, सीखेगा। मैं अपने अदम्य की अगर स्पीच की मैं बात करूं तो सबसे पहले इनकी स्पीच किचन से ही स्टार्ट हुई है। सबसे पहले इन्होंने बेलन सीखा, चौका, ये चूल्हा है,
फिर वेजिटेबल्स पे आए। मैं फ्रिज में जब भी सब्जियां लगाती थी तो मैं बोलती थी अदम में पोटैटो ले आओ, तो अदम में जाते थे, पोटैटो ले आते थे, टोमेटो। अभी इनको सारे वेजिटेबल्स के नेम पता है, सारे फ्रूट्स के नेम पता है। और वो ऐसे नहीं कि मैं पार्टिकुलरली इनके लिए टाइम निकाली, मैं किचन में खड़ी रहती थी और इन्हीं से मांगती रहती थी, इनको मैं बताती रहती थी ये पोटैटो है, ये टोमेटो है। तो इस तरह इनका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया और इनको नॉलेज भी हो गई और इनके साथ मैं टाइम भी स्पेंड कर लेती थी। तो अच्छा है, बच्चे बहुत जल्दी सही हो रहे हैं, सबके बच्चे सही हो जाएंगे। मैम बहुत अच्छे से आपने बताया और यही हम पेरेंट्स को भी एडवाइस देते हैं कि आप एक्स्ट्रा टाइम मत निकालिए कि आप सोचिए सेशन कराना है। आप बच्चे को आप सब्जी भी काट रहे हो ना तो बच्चे को एंगेज करिए, आलू भी छील रहे हैं तो उसमें भी एंगेज करिए, या आप कपड़े भी धो रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मत निकालिए। हाँ, आप निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी जैसे लेडीज है जिनके पास टाइम नहीं है, घर के काम भी करने हैं, बाहर का भी देखना है, तो आप घर के काम में ही बच्चों को, जैसे बड़ा है बच्चा 4+ है 5+ है, तो आप बच्चों को अपने काम में इन्वॉल्व रखिए। जैसे मैम ने एग्जांपल दिया, तो मैम का मैंने देखा है कि वो सारे कामों में इन्वॉल्व करती हैं। एक मदर है, वो तो उनको किचन में भी एक मतलब लड़का है, उसको किचन में भी इन्वॉल्व करती हैं, सब्जी बनाना, चाय बनाना। तो वो सारी चीजें, ये मत सोचे कि लड़का है तो मुझे उसको काम में इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इंगेज करना है। अब आजकल की सोसाइटी में आउटडोर्स एक्टिविटी नहीं है, तो आप बच्चे को कैसे इंगेज करेंगे, बहुत चैलेंज होता है एज मदर के लिए। अब गर्ल्स है तो क्या गर्ल ही काम करेंगी, बस ये सोचना है कि बच्चे को हमें ठीक करना है, तो आप उनको सेशंस में जो बताया जा रहा है वो तो आपको करना ही करना है, उसके अलावा आपको घर के काम में भी इन्वॉल्व करना है। जैसे मदर ने मैम ने एग्जांपल दिया अदम्य का, तो Now ऐसे भी I'll आप कर request, सकते हैं। we are short of time. हम बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है, इतनी सारी बातें करनी है. पूनम मैम, प्लीज, Vaibhav's mother, I'll ask you to please have your experiences and your journey, नमस्ते especially as a नमस्ते mother. सर, हैप्पी नमस्ते. मदर्स डे टू ऑल ऑफ मदर्स। सर, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ? पापा का है, दे दो। दिव्य, मैं ऑटिज्म के बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ सर। हमें कभी भी यूट्यूब को देखकर थेरेपी नहीं करवाना चाहिए। इसके बजाय हमें ऑटिज्म के एक्सपर्ट से सलाह लेकर थेरेपी करवानी चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं स्पीच क्यों नहीं आ रहा है, इस स्पीच में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सर। इस स्पीच के लिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को किसी के घर ले जाने के लिए, शादी में ले जाने के लिए, और किसी से हमें निगेटिव एनर्जी नहीं लेनी चाहिए, निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। या शादी में ले गए तो क्या कह रहा है, उस पे कोई भी हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें ले जाना चाहिए, हमें उसको बताना चाहिए क्या है क्या नहीं है। हम शादी में आए हैं, शादी में अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। और सर, जैसे कि मैम अभी बता रही थी कि हमें अपने कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए, घर के कामों में। अगर हम कपड़े धुल रहे हो, आजकल सब वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते नहीं, डेली के कपड़े जो है आप भिगोइए, बाथ टब में भिगोइए। जो सेंसरी इश्यूज है, बच्चा जब हाथ से उसे निचोड़ेगा या उसे धुलेगा तो उससे भी हमें फायदा मिलेगा। हमारी तरफ से वो एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा और बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा, और वो समझेगा कि कपड़े धुले जा रहे हैं। तो खाने के लिए जैसे हम बैठ जाते हैं, सब्जी काटना हुआ, लौकी दे दीजिए छीलने के लिए, कट करने के लिए, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कि हाथ ना कटे, बच्चा कैसा है, किस टाइप का है। तो लहसुन दे दीजिए छीलने के लिए, प्याज दे दीजिए छीलने के लिए। यह सारी सब्जियों को मिक्स करके रख दीजिए, अलग-अलग टोकरी रख दीजिए। उनको बताइए हर एक सब्जी को अलग करें। वो काफ़ी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और जो फालतू की चीज़ें जब इनको समय मिलता है, तो ये फालतू की चीज़ें के ऊपर ध्यान देते, जैसे कि आवाज़ निकालना हो गया, क्लैपिंग करना हो गया, ये मतलब अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, और जब बिज़ी रहेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे वो। तो मेरा ये सजेशन है कि हमें कभी भी किसी बातों को संकोच नहीं करना चाहिए, अपने एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, और इस बात में बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। और जैसे सर बोलते हैं कि कैसे पता चलता है बच्चों में, हमें सबसे पहले छोटे कि वो अपने नाम को रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मेन चीज़ सबसे सर यहीं से स्टार्ट होता है। हम लोग डिले कर जाते हैं, 1 वर्ड्स पे आ जाते हैं, चलो 1 वर्ड्स बोल रहा है बच्चा, ठीक है, आगे चलेगा। लेकिन आजकल बिल्कुल सर डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी समय हमें पता चलता है वो कि रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और हमें ऑटिज़्म का तक पता चल जाता है फिर।
क्योंकि मैं भी बहुत झेली हूँ। 3 साल का मेरा बेटा था, सब चीज बोलता था, लेकिन उसे 3.5 साल तक सर सब खत्म हो गया, एकदम जीरो पे आ गया। लेकिन इसके बाद सर 2.5 साल कोरोना ले गया, मैं 3 साल से कंटिन्यू थेरेपी ले रही हूँ। सर मुझे आपके यहाँ से बहुत अच्छा, स्वरांजलि स्पीच सेंटर से मुझे बहुत लाभ हुआ है और अब काफी वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं इसका, तो इसलिए सबको धन्यवाद, सारे थेरेपिस्ट को। थैंक यू मैम, आपका डेडिकेशन देख के हमें सीरियसली इंस्पिरेशन मिलती है। हम थोड़ा सा आपका जर्नी शेयर भी करेंगे। मैम हैदराबाद से हमारे पास आई थी और उन्होंने हमें चूज किया था और बहुत सारे डाउट्स हैं मैम के मन में, बट मैंने देखा कि कभी मैम ने डिप्रेशन नहीं देखा। मैंने कहा मैम के साथ एक बहुत पर्सनल इवेंट था, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, मैंने उसके नेक्स्ट डे भी वो थेरेपी लेने आई थी। तो अगर ये डेडिकेशन है तो आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी या हमारे थेरेपिस्ट की कोई हम 1% भी नहीं है मैम आपके डेडिकेशन के आगे, और हमें सही में एनर्जी मिलता है आप जैसी मदर्स से। सीरियसली थैंक यू। मैं नोटिस करता हूँ, मैं एम अ गुड ऑब्जर्वर, मैं हर एक चीज नोटिस करना करता हूँ, तो मैं देखा कि मैम सीरियसली बहुत डेडिकेटेड रहती हैं, एंड आई सैल्यूट टू हिम। यू आर सीरियसली अ सुपर मॉम एंड आई होप कि यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है मैम, कमिंग टू द लाइन, हम टाइम में बड़ा शॉर्ट हो रहे हैं। रिक्वेस्ट आंचल इज मैम इज हियर, शी इज, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड करेंगे। आंचल मैम, कैन यू हियर मी इफ यू आर हियर? Aanchal ma'am is there. Yes. मैम माइक आपका म्यूट है मैम। Yes, let me introduce ma'am. ये हमारे फर्स्ट पेरेंट थे जिनकी थेरेपी हमने स्वरांजलि में स्टार्ट की थी। ट्विंस थे बच्चे, और मैम का एक्सट्रीम डेडिकेशन, और आज दोनों बच्चों को इंडिपेंडेंटली मैनेज करती है। ट्विंस बच्चे दोनों ऑटिस्टिक, 2 years की एज से हमारे पास थेरेपी के लिए आए थे, और नाउ दे आर गोइंग टू स्कूल। इवन दो सम चैलेंजेस आर देयर, बट शी इज मैनेजिंग वेल। शी इज रियली अ सुपर मॉम। मतलब हम इनके डेडिकेशन को सैल्यूट करते हैं। आंचल मैम, आप 1 मिनट के अंदर क्या अपना जर्नी शेयर कर पाएंगे प्लीज? मैम माइक म्यूट है। आई होप आंचल मैम ने, ओके मैम का माइक, इट्स ओके, वी आर कनेक्टिंग हुआ। हम टाइम नहीं वेस्ट करते, एंड नाउ विल आस्क ईशानीज मदर इफ शी इज देयर। शिप्रा मैम, वो हमारे पास बैंगलोर एंड फिर इवेंचुअली वापस चली गई हैं बैंगलोर, क्योंकि उनके कुछ एंगेजमेंट्स थे, बट उन्होंने अपनी एजुकेशन ड्रॉप करी, जॉब ड्रॉप करी। शी इज अ PhD बाय द वे। और सर और मैम का एक्सट्रीम डेडिकेशन, सर की इतनी इलनेस के बाद वो लगातार एडमिट रहे, उसके बाद भी मैम ने कभी थेरेपी ब्रेक नहीं करी। ये बहुत ही इंस्पायरिंग था। मैम, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस? Yes, sir. Sure, sir. Thank you so much, sir. First of all, Yeah. Happy Mother's Day to आपको- all of the mothers. एंड मेरा एक्सपीरियंस मैं बहुत जल्दी से शेयर करूंगी, क्योंकि अभी हम लोग वापस बैंगलोर आ गए हैं, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है कि हम स्वरांजलि में नहीं ले पा रहे हैं इशू की थेरेपीज। बट मैं जब स्वरांजलि आई थी तो ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू आई थी, और मुझे ऐसा किसी के से जानकारी नहीं मिली थी कि आपको यहाँ जाना है, तो मैं उतना फेथ लेके नहीं आई थी। मुझे लगा कि चलो एक बार जाके देखते हैं। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड ना, आई रियलाइजिंग कि आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड माई किड। एक्चुअली बिफोर जब हम लोग इशू का थेरेपी यहाँ पे करा रहे थे बैंगलोर में, तो हम केवल थेरेपी करा रहे थे सर। हमारा कोई अटैचमेंट अपने बच्चे से उस तरह से हो ही नहीं पा रहा था, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। प्रॉब्लम यही था कि हम उसको नहीं समझ पा रहे थे, तो उसको ठीक कैसे करते। आप लोगों ने जो एक बॉन्ड डेवलप किया कि नहीं, आपको ये चीज समझनी है, आपको ये करे बच्चा तो ऐसा करना है। और मैं हमेशा रुचि मैम से बोलती थी, मैम नहीं, मुझे इशू को बस टॉयलेट ट्रेन कराना है, दैट इज माई मेजर कंसर्न। और मैं अब कह रही हूँ कि मैम इशू एकदम टॉयलेट ट्रेंड हो गई है। शी यूज टू गो बाय हरसेल्फ, शी वॉश हर हैंड, शी फ्लश एवरीथिंग, शी इज डूइंग इंडिपेंडेंटली। अभी उसका स्पीच का जो इशू है वो ये है कि वो बस क्वेश्चन का आंसर नहीं करती है, बट इन मैनी ऑफ दी थिंग्स वो अपने सेल्फ मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट है काम करने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, अपना खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्वरांजलि से मुझे जो एक फीलिंग और एक अटैचमेंट बच्चे के प्रति मुझे मिला है,
वो मुझे कहीं और नहीं मिला। मैंने चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे थेरेपी सेंटर में काम कराया, मतलब उसका थेरेपी कराया हो, पर हम लोग केवल जाते थे, इश्यू अंदर जाती थी, वो बाहर आती थी, वो लोग फीडबैक देते थे और यही हमारा चलता था 1, 2, 3 साल तक। बट आप लोग जिस तरह से एक इमोशनली आप लोग एक जॉब नहीं कर रहे हैं सर, मैं बहुत फ्रैंकली कहना चाहती हूँ, आप लोग एक तरह का ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं फैमिली को, जो ऐसा ना लगे कि नहीं हम कहीं जा रहे हैं तो ये एक प्रोफेशनल पाथ है, उस पे हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग इमोशनली अटैच होते हैं बच्चे से, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ के हमें बताते हैं। और थेरेपी, सही बात है कि 40 मिनट की थेरेपी में बच्चा ठीक नहीं होता है। पहले तो मदर को ये समझना पड़ेगा कि उसका बच्चा चाहता क्या है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड, आप यकीन मानो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी और सारी चीज़ें बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव ही होंगी। जब आप अपना मोरल डाउन कर दोगे तो कुछ भी आप नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। अपने मोरल को अच्छा रखिए और थेरेपिस्ट की बातों को सुन के, समझ के, पर ये आप लोगों पे भी सर बहुत डिपेंड करता है क्योंकि सब थेरेपिस्ट ऐसे नहीं होते हैं। आई कैन अश्योर यू, सारे थेरेपिस्ट ऐसे नहीं होते हैं। आप लोग बहुत इमोशनली अटैच होते हैं बच्चों से, तो वो ही हमें हेल्प करता है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अभी स्वरांजलि में नई हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे कंसीडर किया। थैंक यू सो मच नहीं फॉर मैम, गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू आप मैम। स्वरांजलि एंड इट्स टीम हमेशा आपका हैंड होल्ड करेगी। कहीं पे भी अगर हम कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए तो वी विल विश। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट इमोशंस। थैंक यू मैम। Yes, yes, yes. That I understand very well, very well. That I understand very well. Thank you so much. Thank you Thank you, very Thank you, sir. much. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Now ma'am. And, and sir, if I can add here, I'm also in Bangalore. yes ma'am. आपकी team. Hello, we will meet. Shipra ji, Yeah. don't worry. Yes, we will meet soon. We'll call on. Yes, Also, yes, also yes. connect we'll to have us a also. We will be Yes, happy yes, to. sir, done. We सर are मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हुए मुझे 6 महीना हो गया है, बट बीच में 2-3 एपिसोड्स ऐसे हुए जहाँ पे मुझे आप लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ी, Hello, बिकॉज Shani. जय Hello. मैं तो जय जिसमें हमें जय। जरूरत पड़ी थी। एंड सबसे अच्छी बात ये रही सर कि आपके एंड से मुझे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिला, जिससे ma'am. मुझे ये नहीं फील हुआ कि अब मैं अनजान शहर में हूँ, अब मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे इमीडिएट रिस्पॉन्स मिला, मुझे इमीडिएट आंसर्स मिले क्वेश्चंस के, जिसकी वजह से मैं उस मोमेंट पे निर्भय को हैंडल कर पाई थी। तो थैंक यू वेरी मच। और मैंने जैसे पहले कहा था जब मैं निकल रही थी कि मैं आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगी, आई विल कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू यू गाइस, We क्योंकि will आप love लोग to. मेरे We बच्चे will के love लिए मेरी बैकबोन है। सो आई विल बी इन टच विद यू गाइस, प्लीज Nirbhay and all these things. same here. These Same all here, प्लीज are. बेयर ma'am. विद अस सर, वी विल ऑलवेज बी देयर। Yeah, we'll love to have you. Now, I'll invite one of the prominent guests who is physically present over here. You are virtually, but Vandana ma'am is sitting at Swaranjali for this meet. I'll ask Vandana ma'am. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा उनके बारे में। वो उनके इफ आई कैन रिवील, उनके हस्बैंड का एक्सेप्टेंस नहीं है, देन उसके बाद भी वो अपने प्रिशा का थेरेपी करा रहे हैं। आप सोचिए कि कितना टफ होता है कि आपका पार्टनर आपको का एक्सेप्टेंस नहीं होता, डेडिकेटेड है अपने बच्चे के लिए टू मेक इट पॉसिबल। वंदना मैम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इफ यू कैन शेयर योर जर्नी एज अ मदर। Hello, good afternoon, everyone, and happy Mother's Day to all the super moms. We all are here. Thank you for this opportunity, Swaranjali team and Swati ma'am. मैं प्रिशा को लेके मैं यहाँ पे आई थी 3.5 साल की जब प्रिशा थी, और उसके बाद हमारी थेरेपी चली। उसके बाद से काफ़ी सारा, मतलब मुझे विद इन मंथ मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा, और उसके बाद से धीरे धीरे डेवलपमेंट्स के नए नए फेसेस आते गए, और अभी नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अभी आज करंट में अब प्रिशा इस मंथ 5 इयर्स की होने वाली है, और बॉडी ट्रेंड है, टोटली अपनी चीज़ों को कह पाती है, और मतलब बहुत सी चीज़ें जो मिसिंग थी वो सारे माइलस्टोन्स ने गेन कर लिए हैं। अभी एज अ मदर मुझे लगता है कि हम जिन चीज़ों से डील कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी मदर्स वो सारी चीज़ें कुछ उन चीज़ों से निकल चुके हैं, कुछ इन चीज़ों पे हैं, या कुछ इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि पूनम मैम ने बोला था कि आप अपने बच्चे को
वो इन्वॉल्वमेंट दीजिए, एक्सपोजर दीजिए। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं वो नई नई चीज़ों को सीखता है, उसकी वोकैब यकीन मानिए कि मैंने प्रिशा के अंदर जितना चीज़ मैं जब कभी भी मैं उसको फर्स्ट टाइम जू लेके गई, आफ्टर रिटर्निंग देयर उसने इतने सारे क्वेश्चन रेज किए, उसने इतनी सारी चीज़ें बोली उस चीज़ वहाँ जाने की, उसके जो उसका विजिट था जू का, उसके बारे में जो भी चीज़ उसने बोली, तो लगता है कि मतलब जितना हम इन बच्चों को, आप इसको एक रूम में मत, कमरे में मत बंद कीजिए कि आप उसको सिर्फ एक घर के अंदर या आप अपने जो है, और कभी भी इस हेजिटेशन में कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, प्लीज़ डोंट लुक एट देम। आप अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर हो। अगर आप स्टैंड ले रहे हो, अगर आप उसका इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इस सोसाइटी में कम्पीट कर सके, तो आपको वो बैकबोन बनना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ये इधर उधर की बातें नहीं सुननी है कतई। क्योंकि जब कभी भी हम दूसरों की बातें सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स, जाहिर सी बात है वो किसी के साथ भी होगा और किसी भी सिचुएशन में होगा। बट आप अपने बच्चे को हर जगह लेके जाइए, चाहे वो शादी का फंक्शन हो, चाहे वो जू हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो मॉल हो। बस एक एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा आपको उसके पर अटेंशन रखना पड़ेगा जब भी हम अपने बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं। बट आप यकीन मानोगे, जब कभी भी आप इस तरह का विजिट करोगे या जब कभी भी आप बच्चे के साथ आउटडोर एक्टिविटी करोगे, वो बच्चा हैप्पी होगा और उसकी बहुत सारी चीज़ें, आप उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट भी देखोगे, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी देखोगे, वोकैब से लेके उसके बिहेवियर में भी। तो अभी तक जो मैंने स्वरांजलि टीम के साथ सीखा है और जो चीज़ मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, वो यही है कि आज मेरा बच्चा प्रॉटी ट्रेंड है। मैं बहुत कंसर्न थी इस चीज़ को लेके, मैं बहुत कहीं भी जाती थी मुझे बड़ा एम्बैरेसमेंट होता था कि मैं मुझे बच्चे को कैसे पॉटी कराना है, क्योंकि वो ना तो इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठती है, ना ही तो वेस्टर्न सीट पे बैठती है। तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। इन दैट केस मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैम ने जो जो स्टेप्स मुझे बताए या जो भी मुझे थेरेपिस्ट ने बताया है, मैंने उनकी गाइडेंस में वो सारी चीज़ें करी हैं और मैं वो कर रही हूँ। थोड़ा टाइम का लैप्स होता है, चीज़ें होती हैं, और कभी भी अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ, क्योंकि हर बच्चे का अलग चैलेंज है और हर बच्चे की अलग सिचुएशन है। हो सकता है कि आज आपका बच्चा अभी पॉटी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा, उसका नहीं है उस समय, लेकिन किसी बच्चे का है और वो आपके बच्चे से छोटा है, तो इसमें कंपेयर करने वाली चीज़ मत कीजिए। क्योंकि आप देखिए, ये एक नॉर्मल सिचुएशन में भी होता है। नॉर्मल सिचुएशन में भी हमें ये समझाया जाता है कि हमें बच्चों के बीच कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और ये तो इन बच्चों के साथ तो थोड़ा-सा हमें और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जहाँ आपने कंपैरिजन शुरू किया, वो आपके अंदर ही एक गिल्ट और आपके अंदर ये लगा, अरे नहीं, मुझे थेरेपी से कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, या मेरे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, उनका बच्चा तो इतना छोटा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नहीं, प्लीज़ डोंट, ये सब चीज़ें बंद कीजिए। आप अपनी प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, थेरेपिस्ट आपसे जो कह रहे हैं, स्वाति मैम आपसे जो कह रही हैं, फाल्गुनी मैम जो आपसे कह रही हैं, प्लीज़ उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको आगे बढ़िए उस चीज़ों के साथ, और आप देखेंगे आपके बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। बिकॉज़ मैंने स्वरांजलि टीम के साथ जुड़ के ये चीज़ें देखी हैं, और इसी के लिए मुझे तो जो भी ऐसा बच्चा मिलता है या जो भी ऐसी मदर मिलती है सोसाइटी में, उससे ज़रूर मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ एक बार आप विजिट करो। बिकॉज़ आपको जो कहते हैं ना, अभी एक मैम बोल रहे थे, मैम का शिप्रा मैम, सॉरी, तो कि जो इमोशनल कनेक्शन है हमारा ना, वो कनेक्शन किसी और सेंटर में या किसी और थेरेपिस्ट के साथ, मुझे यहाँ के थेरेपिस्ट के साथ भी, उनके लिए भी मैं एक बार उनको ज़रूर अप्रेस करना चाहूँगी कि मतलब क्या आप जिस तरह से कनेक्ट होते हो ना बच्चे के साथ, बच्चे स्कूल के टीचर का नाम नहीं याद रखता, यहाँ के थेरेपिस्ट का नाम प्रिशा को याद है, वो घर जाके उनका नाम बोलती है। यहाँ से कई बार घर जाने के बाद वो बोलती है मुझे मैम के पास जाना है, आजकल रेहामा मैम को हामा मैम के पास जाना है। यस यस यस। तो ये इमोशनल कनेक्ट हमें डेवलप करना होगा, और मैं तो चाहती हूँ कि ये चीज़ें स्कूलों में भी हों। बिकॉज अभी ये चीज़ मैंने कल भी सर से बोली थी कि अभी हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस के साथ साथ सेकंड मेजर इशू है कि हमारा एक्सेप्टेंस नहीं है। अब प्रिशा के डैडी प्रिशा को बहुत प्यार करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि नहीं, टाइम के साथ देखो ठीक हो जाएगा ये सब चीज़ें। बट एज अ मदर मुझे लगता है, जो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ या और बच्चों को देखती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को, हाँ, तो सबका फेज अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है,
और सबकी कंडीशन अलग है, तो डोंट कंपेयर, जस्ट डू whatever your therapist is saying and whatever Swati ma'am is saying. Thank you all for joining us, and thank you Swati ma'am for inviting us for this wonderful moment. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आप एक अच्छी मदर, सुपर मदर ही नहीं है, एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से अदर मदर्स को ये बोला, इट्स सीरियसली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो भी थेरेपिस्ट के लिए आपने सीरियसली कहा, दिस इज आवर रियल अर्निंग्स यही है सही में, सीरियसली। The motive is this: we have to help each other. The price we charge is just for the थिंक कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को भी रन करना होता है, बट रियल वैल्यू, रियल अर्निंग्स ही है। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टॉक मैम, थैंक यू। आई वी रियली अप्रिशिएट यू कि आप यहाँ पे फिजिकली आए एंड इतना एफर्ट लिया, वी रियली अप्रिशिएट दैट। So at last, if Kushag mother, I think she's left now the meeting, and Itika ma'am is there, I guess. Yes. अब बस एक और अच्छा सा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हमारी टीम में, हमारे इतने सारे थेरेपिस्ट की टीम में एक मदर है जो सीरियस एक थेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक स्पेशल मदर भी है। इतिका मैम, प्लीज कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस एज अ स्पेशल मदर और एक एज अ थेरेपिस्ट एट स्वरांजलि, इफ यू कैन हियर मी। I think it, yes, please. ठीक है सर, मैं मतलब मेरा बेबी जब हुआ था उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब थी कि मैं कैसे अपने बेबी के साथ अपना मतलब समय मैं अपना बिताऊंगी और कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मेरा भी एक सपना था कि मैं भी कुछ करूं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो इसलिए मैंने भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल मैंने किया उस समय तक। मुझे 3-4 साल तक तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मेरे बेबी के 3-4 साल होने तक, कि मैं कैसे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। पर फिर मुझे कुछ लोगों ने आइडिया दिया कि आप स्पेशल फील्ड में आओ, क्योंकि आपका बच्चा भी स्पेशल है, तो आप स्पेशल फील्ड में आओ। मेरा बच्चा CP प्रोफाउंड लेवल पे था, तो मतलब उसे हमेशा एक गाइड की ज़रूरत पड़ती थी, और ना उसकी मतलब नेक भी उसकी नहीं उठती थी। आफ्टर 3 ईयर मैंने उसको एक 3 मंथ के बच्चे की तरह अडॉप्ट किया, गोद में लिया भी तो उसको एक 3 मंथ के बच्चे की तरह लिया मैंने। तो धीरे धीरे फिर मुझे सबने कहा कि आप स्पेशल फील्ड में आओ, तो मैंने डिस्टेंस लेवल पे अपना B.Ed कंप्लीट किया, और B.Ed कंप्लीट करते करते मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ कि मैं अपने बच्चे के साथ कैसे काम कर सकती हूँ, कैसे क्या करती हूँ करूँगी। तो मैंने फिर धीरे धीरे करके अपने बच्चे के साथ काम करना शुरू किया। आज मेरा बेबी, जो मैं किसी डॉक्टर के पास लेके जाती थी या कहीं लेके जाती थी, तो डॉक्टर बोलते थे कि इसको हमेशा एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, आपका बच्चा कभी उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं। आज मेरा बेबी बैठ भी रहा है, अपनी नीड्स को भी वो बता रहा है, बस थोड़ा सा पॉटी ट्रेनिंग की उसको ज़रूरत है। वो भी मैं स्वरांजलि से सीख ही लूँगी, क्योंकि मेरी भी इच्छा है, मैं काफ़ी चाहती हूँ कि मैं स्वरांजलि से सीखूँ। और मैंने रुचि मैम से बहुत कुछ सीखा है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने बच्चे को गाइड भी किया है। मैम जितना मुझे बताती गई, तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा भी इसी की तरह, मैं CP बच्चों को भी देखती हूँ एज अ सर्वज्ञ, मैं देखती हूँ कि सर्वज्ञ की तरह है। बस सर्वज्ञ और मेरे बेबी में इतना फर्क है कि सर्वज्ञ थोड़ा खड़ा हो पाता है, मेरा बेबी खड़ा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी मैं OT से, अलका मैम से भी थोड़ा बहुत मैं पूछती रहती हूँ, अमृतेश सर से भी पूछती हूँ, और रुचि मैम से तो मुझे बहुत ही आइडियाज मिले हैं। मैम ने जो स्पीच थेरेपी बताई है, उस पर भी मैं अपने बच्चे को, स्पीच का भी मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ। मेरा बेटा 7 ईयर का हो चुका है, बट अब मैं जब उसको ओरोमोटर थेरेपी या पकरिंग वगैरह कराती हूँ, तो मेरे बेबी का पास साउंड आता है। और अब मैं यही सोचती हूँ कि शायद स्वरांजलि से सीख के शायद मैं अपने बेबी के साथ भी बहुत ही अच्छा काम कर पाऊंगी। इसलिए मेरे पास कोई भी पेरेंट्स आके कहता है कि मैम मेरा बच्चा, तो मैं यही कहती हूँ, मैं खुद एक स्पेशल मदर हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि आप जहाँ आए हो वहाँ एक बहुत ही अच्छा आपको माहौल भी मिलेगा, और आपका बच्चा यहाँ से पूरी तरीके से डेवलप होके जाएगा। और हम लोगों की हमेशा यही कोशिश, और खासकर मैं एक स्पेशल मदर हूँ, तो मेरे सामने जितने भी बच्चे आते हैं, तो मैं यही सोच के उन बच्चों के साथ काम करती हूँ कि मैं इसकी मदर ही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चा है जिसका एक चैलेंज है मेरे पास,
कि मुझे भी इसको सोसाइटी में लेके खड़े होना है और सोसाइटी में इसको दिखाना है। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं अपने बच्चे से भी आप लोगों को मिलाऊंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा और अपने बच्चे के साथ काम करूँगी, उसके बाद मैं अपने बच्चे को आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, जब थोड़ा-सा मेरा बच्चा और डेवलप हो जाएगा। नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस एंड इसीलिए हम इमोशनली और कनेक्ट भी हो पाते हैं आप जैसे एम्प्लॉइज़ के होते हुए, जो हम सिर्फ अपनी मदर अपने बच्चे को नहीं, हमारे स्वरांजलि मानने वाले हर एक बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं। नाउ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस मदर्स हैं जिनके हम एक्सपीरियंसेस नहीं ले पाए, आई एम सॉरी, बट हम टाइम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं एंड बस हम अब लास्ट हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स को भी वेरी लिमिटेड टाइम के लिए हमने एंगेज करा हुआ है, क्योंकि उनको भी सब अदर प्रायर एंगेजमेंट्स हैं और आपकी भी एंगेजमेंट्स होंगे। सो कुछ क्वेश्चंस जो हमें रिसीव हुए थे उसमें से लेट्स टेक वन ऑफ वन मैम। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा वो क्वेश्चन है, आई गेस जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, यस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज सबमिटेड बाय रिचा मैम एंड उन्होंने एंड वो कोई भी आंसर कर सकता है हमारे एक्सपर्ट टीम में कि बिहेवियर इज चेंजिंग डेली, टर्निंग एग्रेसिव। निर्भय का केस है, चाइल्ड एज इज 9 years एंड रिचा मैम इज आल्सो प्रेजेंट। तो आई विल होप कि फाल्गुनी मैम, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ रिचाज मैम? हेलो मैम। हाय मैम। हाँ मैम, तो जैसे कि ऑलरेडी निर्भय 9 years का हो चुका है और काफी सारी चीजें अंडरस्टैंड करता है। तो बस मैं आपको शायद एक सजेशन ये देना चाहूंगी। हाँ, हेलो निर्भय, एक सजेशन। हेलो। तो उसका रिस्पॉन्स है मैम, वो आवाज की तरफ आगे जाता है, बट आई कांटेक्ट अभी भी थोड़ा बहुत चैलेंज में आता है उसके। ओके मैम, तो बस ये छोटा सा ये सजेशन है, आप इन फ्यूचर कभी भी स्वरांजलि से कनेक्ट हो सकते हो फर्दर गाइडेंस के लिए। बट क्या कभी आपने कुछ विजुअल स्केड्यूल टाइप की कोई चीज निर्भय के साथ ट्राई की है? यस मैम, तो देयर इज दिस ऐप व्हिच इज कॉल्ड आवाज ऐप, जिससे हम तो वो निर्भय को इंट्रोड्यूस्ड है इस समय। निर्भय इज ट्राइंग टू लर्न दैट ऐप कि अगर इमोशंस अगर वो जाहिर नहीं कर पा रहा है अपने, तो वो आवाज ऐप के थ्रू मुझे कम्युनिकेट कर पाए। कि मैं उसको सिखा रही हूँ अभी, ही स्टिल इन द लर्निंग फेज, कि कैसे वो इस ऐप के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट कर सकता है, ताकि मुझे पता चले कि वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जहाँ अग्रेशन है वहां पे वो क्या फील कर रहा है। तो मैंने वो ऐप इसको इंट्रोड्यूस कराया है अभी। इट इज हार्डली 2 weeks जिसमें उसको ये इंट्रोडक्शन मिला है ऐप का। तो उस ऐप से मैम एडवांटेज ये मिला है कि बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में, निर्भय मुझे अपना चॉइस कम्युनिकेट कर पा रहा है। ओके। बट जब उसका अग्रेशन जो इमोशन है, इमोशन एस्पेक्ट है मैम, वो डिटेक्ट करने में मुझे अभी भी चैलेंज आ रहा है। हालांकि मैं बैकग्राउंड चेक करती हूँ कि क्या हुआ जिसने इसका बिहेवियर ट्रिगर किया, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ गैप दैट आई नीड टू कवर, जो कि मैं अभी नहीं कर पाई। ओके, इमोशनल स्किल्स में शायद उसको गैप्स है। यस, इफ यू आर ट्राइंग तो व्हाई, है ना, मतलब जैसे ये रीजन उसको अभी शायद हम विजुअल स्केड्यूल से समझा पाए, या जैसे कुछ कम्युनिकेशन बोर्ड होते हैं। जी है ना, या तो पेक, जो आपके पेक कार्ड्स होते हैं मैम, वो सारे या तो वो थैंकफुली रुचि मैम के साथ जब मैं स्वरांजलि में इसकी ट्रेनिंग करा रही थी, तो फ्लैश कार्ड्स हैं, पेक कार्ड्स हैं, ये सब की इंफॉर्मेशन मुझे डाउनलोड मिली थी एंड वी आर यूजिंग ऑल ऑफ दैट। और करंट सेशंस जहाँ निर्भय ले रहा है बैंगलोर में, वहां पर भी इस पे बहुत काम हो रहा है। सो द वर्क इज इन प्रोसेस एज वी से। बट मेरा बस चैलेंज ये था कि बहुत बार ऐसा होता है मैम दैट सडनली, अब जैसे मैं किचन में हूँ, निर्भय किसी दूसरे कमरे में है, एंड सडनली आई विल हियर हिम स्क्रीमिंग, एकदम से स्क्रीमिंग आती है उसकी। अब मैं उसके पास जा रही हूँ, उसको पूछ रही हूँ क्या हुआ। नाउ दिस वर्ड क्या, व्हाई, व्हाट, ये क्वेश्चंस के आंसर में अभी भी उसको नहीं पता क्या बोल रहा है, एंड एकदम से वायलेंस, एकदम से अग्रेसिव मोड पे जाता है, एंड 1 मिनट लगता है उसको शांत होने में। ओके मैम, तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो इतना स्टीप है मैम कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। That's where I totally go blank.
तो ठीक है मैम, जैसे कि आप एक बार स्वरांजलि से कनेक्ट होना। जी। बट जैसे कि एक बार स्वरांजलि से आप कनेक्ट होना। और जैसे कि मैम ये एक होता है कि एट अ टाइम अब जब बच्चा अग्रेशन में होता है हम उसे कुछ नहीं समझा सकते हैं, बट उससे करेक्ट। पहले ही हमें उसको एक कम्युनिकेशन बोर्ड इंट्रोड्यूस करना होता है, जो कैसे यूज करना है वो पहले हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा, और वो तब बिल्कुल हो पाएगा बिल्कुल जब मैम। निर्भय अपने एकदम कामिंग लेवल पे हो। तो जब एग्जैक्टली हम मैम, उसे ये एग्जैक्टली। हाँ, तो हमें ये उसको एक बार सिखाना पड़ेगा। अगर उसको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे कि आवाज ऐप के थ्रू ये समझाने की कोशिश करते हैं, बट अगर जी। हम ऐसा एक छोटा सा कम्युनिकेशन बोर्ड जिसमें सिर्फ उसकी नीड रख के उसको करेक्ट। समझाई जाए कि वो कोई चीज ढूंढ रहा है, उसको प्यास लगी है, तो ये सारी चीजें उसको समझ में आए, तब वो कम्युनिकेट कर पाएगा इफेक्टिवली। और उसके ओके इमोशंस को भी, कि ओके। जैसे स्क्रीम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो अब ये राइट। एट अ टाइम मैं, जब वो स्क्रीम कर रहा है उस टाइम पे मैं नहीं समझा पाऊंगी निर्भय को, बट अगर हमारे पास एक कम्युनिकेशन बोर्ड हो कि मैं स्क्रीम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और मेरे पास 5 ऑप्शंस है कि मेरी कार नहीं मिल रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, या फिर मुझे आउटिंग जाना है। ये मेरे पास 5 ऑप्शन है। अभी मैं निर्भय को पहले उस पर सिखाऊंगी कि निर्भय, जब मैं स्क्रीम करती हूँ या मुझे गुस्सा आता है तो तुम्हें क्या करना है। तो शायद ओके निर्भय उसमें से एक ऑप्शन चूज करे कि आउटिंग जाना है। तो अब ओके जब निर्भय को ये समझ में आएगा कि व्हेन आई स्क्रीम, मेरे में भी ये सारे रीजन हो सकते हैं, और फिर जब वो स्क्रीम करता है तब हम उसे पूछ सकते हैं, एंड आई नो कि वो इमिडिएटली आंसर कर पाएगा उस टाइम पे। बट उससे कम्युनिकेशन बोर्ड कैसे यूज करना है वो हमें पहले सिखाना पड़ेगा, और वो ओके। तभी सिखा पाएंगे जब निर्भय लर्निंग स्टेज में होगा। जब वो अग्रेसिव होगा हम उसे नहीं सिखा पाएंगे। करेक्ट या करेक्ट। फिर और एक चीज ये भी है कि जैसे निर्भय को गुस्सा आ रहा है, तो अभी ये गुस्से को शांत करने के लिए वो क्या क्या चीजें कर सकता है। तो अगर हम उसे 5 ऑप्शंस देते हैं, अभी बच्चे को नहीं पता है, बट अगर हम कोई 5 ऑप्शन देते हैं कि पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, तुम्हें जब गुस्सा आए तो तुम ये 5 चीजें कर सकते हो। अभी ये जब हम उसे सिखाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तब उसे समझ में आएगा। हो सकता है कि 15 दिन के बाद निर्भय वो सारी चीजें अडेप्ट करने लग जाए कि ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है तो आई कैन गो एंड ड्रिंक वाटर। तो ओह वो जो ओके ओके टेंट्रम्स है ओके वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ओके। बट ये सारी चीजें अप्लाई उस टाइम पे नहीं कर सकते, उसको पहले हमें सिखाना पड़ेगा कि इसको अप्लाई कैसे करनी है। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। तो मैम वी आर आप रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वी विल रिक्वेस्ट कि इफ यू हैव एनी थैंक यू queries, सो you मच। can connect us and we will connect you with our team. Okay, now we have other question, ma'am, for Shoham Vaishya. Shoham Vaishya mother is there? I think she is not available, I guess. Shoham Vaishya mother is there? हम आपका क्वेश्चन ले सकते हैं. Silpi Jaiswal ma'am is there? I think both of them are not here. Aanchal ma'am, आपका क्वेश्चन था. शिल्पी मैम इज देयर. शिल्पी मैम इज देयर एंड शिल्पी मैम का क्वेश्चन है, मेरा बेटा बोलता नहीं है, बस वो सब्जी, क्या चीज़ है मैम, सब्जी तरह हो जाए, सबकी तरह हो जाए. आई थिंक आप ये लिखना चाह रहे थे. मैम आपका माइक म्यूट में है, प्लीज. यस, आई थिंक मैम आपका माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. नकुल ने मुझे टाइप नहीं करने दिया आगे, वो जैसे ही फोन देखते हैं ना हाथ में तो फिर वो ओके छीन ओके, लेते हैं। प्लीज मैम अपना क्वेश्चन पूछिए. हाँ, मैं ये क्या है नकुल, जैसे फोन में इस टाइम हम लोग पोएम बजाते हैं, ये स्कूल भी जाते हैं वहाँ, तो फिर ये पूरा पूरा ट्विंकल ट्विंकल आई लव मम्मी बोलते हैं। आप भी एक दिन मैम करा के देखिएगा इनको, और जैसे ही फोन को पीछे हम कर देंगे, जितनी देर फोन में बजेगा इनको ऑडियो, उतनी देर ये बोलेंगे पूरा वर्ड्स, पूरा सेंटेंस, उसके बाद फिर ये नहीं बोलेंगे दोबारा। मैम क्योंकि अभी नकुल का स्पीच जो है 1 वर्ड में, अभी जैसे जो होता है ना विजुअल स्टिमुलेशन और एक होता है ऑडिटरी स्टिमुलेशन, तो नकुल ना विजुअल पिक्चर देख के बोलता है, और दूसरा है ऑडिटरी सुन के, जो आवाज आती है फोन में वो सुन के उसको रिपीट करता है। अभी उसकी लैंग्वेज उतनी नहीं है कि वो खुद से रिकॉल करके बोले।
अभी क्या है कि जैसे हम बोल रहे हैं तो वो हमें कॉपी करता है। तो आपको भी करना है कि जैसे फ़ोन पे चल रहा है, वो कॉपी कर रहा है, तो आप उसके साथ आप भी उसके साथ मतलब गाओ, आप भी राइम्स को एक्शन के साथ में। तो नकुल का अभी एज क्या है, 3+ है, ठीक है मैम, 3.2। नकुल हमारे पास 2+ में आए थे, 2.5 साल। तो अब क्या है नकुल, तो मैम इतना टाइम लगता है 6 मंथ बच्चे के इंटरवेंशन में कि बच्चा वर्ड्स को रिकॉल करना स्टार्ट करे। हाँ मैम, तो पहले तो जब नकुल आए थे हाँ, तब तो इनका आई कांटेक्ट भी तो नहीं था, नेम हाँ न रिस्पॉन्डिंग भी नहीं थी। हाँ यस मैम। तो अब क्या नकुल का है कि 0 लेवल जो था वो अब इनका इंटरवेंशन बेसिक लेवल पे आ गया। बेसिक मतलब वर्ड को इमिटेट करने लगे, लेकिन अभी भी लैंग्वेज नहीं कहेंगे क्योंकि अभी नकुल ने सिर्फ बोलना स्टार्ट किया है। तो आपको घर पे क्या करना है, विजुअल पिक्चर्स देना है, फ्लैश कार्ड्स आपने जो बोला, मैंने आपने बोला था अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप सेंटर वो पे मैं लेके आइएगा। मंडे से, हाँ मैं हाँ हाँ, भेजूंगी मंडे तो से, कल से। उसको विजुअल्स, हमारे जो बच्चे होते हैं विजुअल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी, ये हमारे स्टिमुलेशन है जो हमारे मैसेज के थ्रू वो ब्रेन में प्रोसेस करते हैं मैम। तो आपको ऑडिटरी के थ्रू, जैसे आप कहती है ना कि वो राइम्स जब तक फोन में बजता है तब तक वो और बोलता कभी है। कभी हेलो भी, जैसे फोन उठा लिया है, टीवी का हाँ। रिमोट, एसी का रिमोट कान में हम्म लगाएंगे, 3-4 बार हेलो हेलो बोलेंगे, उसके अच्छा बाद अच्छा। फिर नहीं बोलेंगे। हाँ, तो मैम यही है कि वो जितना हम लोगों से सीखता है बच्चा उतना ही बोलता है। तो आपको अभी अटेंशन देना है, आपको कोशिश करना है कि नकुल के साथ, अभी जैसे मैंने बोला था कि जितना बच्चे के साथ खेलेंगे बच्चा आपके साथ सीखेगा। तो खेल खेल में राइम्स के थ्रू आप उसको वर्ड्स दो, जैसे मॉमी फिंगर, तो वो मॉमी वर्ड याद कर लेगा। डैडी फिंगर तो डैडी वर्ड याद कर लेगा। फिर हमने डॉग, डॉग कैसे बोलता है, भोबो। कैट कैसे बोलती है, तो वो सारे वर्ड्स नकुल ने याद कर लिए हैं। लेकिन वो विजुअल, वो पिक्चर को देख के बोलता है मैम। ऐसे आप पूछोगे डॉग कैसे बोलती है तो मे बी वो ना बोले, लेकिन जो पिक्चर्स को देखता है तो तुरंत बोलता है। इसका मतलब वो ये स्पीच आ कैसे रही सही है। होगा मैम? मैम देखो अभी इसका 1 वर्ड से आ रहा है तो अभी और आपको टाइम देना है, लेकिन थोड़ा सा आपको कोशिश करना है। जैसे और पेरेंट्स ने बोला कि सिर्फ स्पीच इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो। तो स्पीच तो आ रही है, आगे भी वो 1 वर्ड है तो धीरे धीरे उसकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। आप टेंशन मत लीजिए, आप उसको घर पे स्टिमुलेशन देती रहिए मैम, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू और खुद भी बोल के, एक्शंस के आई थ्रू। थिंक रुचि यू हैव टू स्टिक विद द शेड्यूल। हम ऑलरेडी 15 मिनट्स डिले मैम, हाँ, फिर प्लीज। मैं सेंटर में हम आपको बात कर लेंगे मैम। We have some new parents as well जो हमसे Instagram से कनेक्ट हुए थे। I think कुसुम फातिमा मैम, आपका क्वेश्चन था, if you can ask your question, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, और जो भी पेरेंट्स अब क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज दे कैन रेज देयर हैंड्स, हम वन बाय वन आपके आंसर्स लेना चाहेंगे। If anyone wants to ask the question, they can unmute and ask them one by one. Yeah, Sabur ma'am, please ask your question. Hello, hi. As such question nahi hai, but I just wanted to update you guys about Abbas. He Okay. has Hello, finally ma'am. started saying hello. He was looking at your face, Ruchi ma'am. वो Yes, फोन में ma'am. आके ऐसे Hello. देख रहा था कि मैंने कहा अच्छा ये remember। उसने Yes, ma'am. finally 3 words join करने लगे हैं। तो Okay, okay, ma'am. one day he was eating chicken with some sauce, तो मुझसे बोला I want sauce। तो मैंने कहा oh my god you Okay, want okay. sauce। मैं रोज उसको बोलती थी you want sauce, you want this। Yes, ma'am. पहले वो 1 word में था ना आपके टाइम जब हम लोग आए, हाँ, yes, ma'am. Yes, पर ma'am. अब Yes. ये बोलने लगे हैं I want this, I want ice cream। whenever he goes he knows the shop, then he will say I want this, I want that। ऐसे काफी 3 letter word join करके अब बोलते हैं, अपनी चीज मांगने लगे हैं। Okay, और okay. बिना किसी मतलब अब इन्होंने ऑडियो भी सुनना छोड़ दी है। हम लोग जो पहले इनको एलेक्सा वगैरह सुनाते थे वो हमने अलग से छोड़ दिया। Okay. हम लोग सिर्फ वर्बली मोस्टली कोशिश करते हैं और खेल में Okay. लगाए रहते हैं, कोई स्क्रीन नहीं है। तो Okay, इन्होंने okay. अभी ना अपने आप से याद कर लेते हैं, मुझसे आके बोलते हैं कि मम्मा डांसिंग डांसिंग दिस वन। मतलब ही Okay. नोज एवरीथिंग एंड मेमोरी रिकॉल से मुझे अभी पता चला कि ये इम्प्रूवमेंट है। मुझे लगता था पता नहीं इसमें क्या कोई अच्छी चीज है कि नहीं कि मेमोरी रिकॉल से बोल रहा है। मतलब कोई राइम ऐसे पहली बार भी इसने अगर कुछ सुना है ना तो वो पूरा ऐसे पता है कि ये वाला गाना मुझे चाहिए, और मुझे बोलता है कि ये वाला गाओ। अब आके बोलेगा मम्मा पार्टी फ्रीज डांस। हमने कहा अच्छा तुम्हें पार्टी फ्रीज डांस Okay. सुनना है।
ठीक है, तो okay. I hope it's good. So Like wonderful, so wonderful to hear the progress of Abbas. And Sabur ma'am came all the way from Australia to Lucknow, and she enrolled for the therapy of Abbas, and we hope Abbas has improved remarkably good. And we wish Yeah. Abbas a very fantastic journey of progress. And We whenever are coming back in hopefully in June or July. we will love to So meet we'll you guys. start again. Definitely, ma'am. Now we are running really short of time. We are having just 2 minutes more. I'll not engage any more than that time. If anyone wants to ask the questions, else I have to take the questions which we have received on Instagram and other thing. आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, कुसुम, फातिमा मैम, I think you आपका कुछ क्वेश्चन हो तो you can raise your hand and ask from our expert. And कोई भी ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो आपके ओपिनियन हो, तो आप प्लीज पूछ सकते हो. टिल जब तक कोई पूछ रहा है तब तक मेरे पास कुछ कॉमन क्वेश्चन रिसीव हुए थे, जैसे जो इंस्टाग्राम पे मैं चाहूंगा कल्पना मैम, इफ यू आर हियर एंड यू कैन आंसर. एक क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ है. हेलो मैम, मेरा बेटा 3.5 मंथ का है. फोन बहुत देखता था, अब नहीं देखता है फोन. अब नहीं देखता है फोन, लेकिन मेरा बेटा बोलता नहीं है, नहीं सुनता है, बट बिहेवियर अब 1 मंथ से बेहतर है, बट नजर नहीं उठा के देखता है. तो कल्पना मैम, कैन यू सजेस्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर दिस पेरेंट? यस. सो जैसे कि अगर आप बच्चे को अर्ली एज में, जब उसका लर्निंग टाइम होता है, लर्निंग पीरियड होता है, तो आप अगर उसे फोन इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उसका जो लर्निंग होता है वो अफेक्टेड हो जाता है. हमारे बच्चों में सबसे पहले आती है अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन सीख करते हैं. उसके बाद हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद बच्चे बोलना शुरू करते हैं. तो जब बच्चा फोन देखता है तो वो सोशली डिस्कनेक्टेड होता है अपने सराउंडिंग से. उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कौन आया, कौन गया, कौन उसको क्या बोल रहा है, वो उन चीजों को, उन इंफॉर्मेशन को मिस आउट करता है. तो ऑब्वियसली जब उन चीजों को मिस किया तो उसका सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई. उसने अपना मैक्सिमम टाइम फोन में दिया, और फोन में हम विजुअल लेते हैं. बच्चे फोन में विजुअल लेते हैं. जैसे कई बार पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा तो फोन में बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सीखता है, बट जो चीजें वो फोन में देखता है वो रियल वर्ल्ड में होती नहीं है. वो चीजें जनरलाइज आप कर नहीं सकते हो. तो ऑब्वियसली उसकी अंडरस्टैंडिंग अफेक्टेड हुई है, तो उसके एक्सप्रेशन भी नहीं होंगे, उसके पास कंसेप्ट नहीं होंगे. और क्योंकि फोन की वजह से उसका अटेंशन, फोकस, सिटिंग टॉलरेंस, बिहेवियरल इशू, सारी चीजें आपकी अफेक्टेड होंगी, है ना. तो इस वजह से अगर आपने अभी फोन छोड़ा है, और तो अब आपको उसे जीरो से अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, उसकी लर्निंग को स्टार्ट करना पड़ेगा. और बिकॉज ही इज 3.5, तो बच्चे में टेंट्रम्स आएंगे, क्योंकि अभी इस एज का बच्चा एक्सप्रेसिव होता है. उसके अपनी फीलिंग्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं जो आपको वो बोलना चाहता है, लेकिन ही इज नॉट हैविंग सफिशिएंट वर्ड. उसके पास इतने वर्ड्स नहीं है, उसके पास वो कम्युनिकेशन का मोड नहीं है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन होती है. So when you need to start with the intervention में सबसे पहले हमें उसके बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, and then we can move to speech and language. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful answer to the question. Now we'll be closing this deal by saying thanks to everyone. हर एक मदर को हमारा सैल्यूट है, and to every mother, here is a day. Your journey is seriously powerful. Your presence is enough. Your efforts are changing lives. Thank you for joining us. And at last, I'll thank to all experts for their time, and it was like beyond the schedule, and you have some engagements और आप रुके रहे हमारे लिए. Thank you very much from my bottom of my heart for the wonderful parents who have shared their journeys, for the mothers for their utmost trust for us, our love and affection for this. Seriously, it's something beyond like connections of working. It's really a connection from art. Seriously, thank you. I'm really appreciate everybody's, and I am very indebted with your time and efforts and our valuable experiences.
On last note, I'll say, जिनके भी questions हम नहीं ले पाए, our Suranjali team is there, our experts are there. If you want to connect them, you can connect us. We will eventually connect to them. आपके सारे questions के answer हम as it is दे देंगे, ठीक है? We are there to handhold you, help you in each and every way, whether you are associated with us or not. If you have any doubts, we are there to support you in each and every things which matters. So I hope, thank you everyone at last, and we'd like to close the webinar. And it was a fantastic and valuable meet today. Thank you for all. Thank you, sir. Thank you, Ruchi ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. Thank you, parents. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Bye. See you. Take care, and happy Mother's Day. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye. Bye.